Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to derive here equation of uniformly accelerated motion, and that topic is very interesting and very easy. Hope you will enjoy this topic, but I will derive these equations by using here graphical approach, and that approach is I will use here velocity time graph to derive these equations graphically. So dear students, I am going to derive here first equation of motion, and that is V is equal to U plus AT. Hope you will enjoy. तो हम derive करेंगे see dear students, to derive the equations of motion of a uniformly accelerated motion graphically derive करेंगे. और पहली equation क्या है? What is first equation here, my dear students? The first equation is like here V is equal to U plus AT. Where usually these have usual meanings that V is the final velocity and U is initial velocity and is acceleration and T is time. You know these things. So I am going to derive this thing here, dear students. See now how I can derive this. See dear students. As dear students, let us consider here a body is moving along x-axis. It has already started its motion, but I am observing the motion here at this point. So this point for me is observation point, origin, and for me it is origin, but it is already in motion, and I am at this instant I observe its motion to be as having initial velocity u. And let here I am taking time t is equal to 0 at origin. So at time t is equal to 0, the body has initial velocity u. Let after a certain interval of time it reaches to point A covering a distance s, but it is moving with uniform acceleration. Let it after a time t, let us suppose it takes time t to reach from this origin to A, and finally it occurs and final velocity v at point A. See dear students, the body is already in motion and I am observing motion at this point O. For me it is origin because observation starts from this point, and I am taking here time to be as 0 for me, and here it is already in motion, so for me at this point initial velocity is u. Let after a time t covering a distance s and moving with constant acceleration it reaches to point A and finally occurs a final velocity v. Hope you have got this. Now I will represent this in terms of velocity time graph, and I will then derive equations of motion. See dear. Now what is here? Yes, A is constant. We know that roughly I am writing here A is equal to V by T. This A is constant. I am dividing it by 1. Therefore V is equal to AT. So when A is constant, then if I am taking in velocity time graph, here I am taking, dear student, is this as x-axis to be as velocity time, and along y-axis I am taking to be as V. What is VT graph? VT graph is nothing, but it is the graph drawn between velocity and time by taking velocity along y-axis and time along x-axis. And this is origin here. The graph here for uniform acceleration, when A is, let us say it is 3, I will take t along x-axis and v along y-axis. Then the graph between velocity and time, that is y and x, because I am taking velocity along y-axis and time along x-axis. So this is a linear equation in two variables. So velocity time graph, velocity time relation here is a representation of linear equation in terms of y and x. So the graph of this will be a straight line for your kind information. See dear students, now I am going to derive here first equation of motion. See dear students, first equation of motion. What is first equation of motion? It is like this, that is, it is velocity time relation. In fact, it is V is equal to U plus AT. This relation I have to derive here graphically, but using VT graph. Now see, this is the motion I am taking. This is reality here. Reality में कैसे realize करें? ऐसे चलती है गाड़ी, सी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे चलती है. तो मैंने बताया आपको.
अब इसको दिस सिचुएशन आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दैट इज ए स्ट्रेट लाइन हियर सी डियर। अब क्या करेंगे यहाँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ टाइम t है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, यहाँ ग्राफ लाइन y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, तो इस वक्त क्या होगा इसकी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो u। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कितना लंबा है u। So what are the coordinates of this point? The coordinates of this point are 0 and u. 0. The coordinates of this point. The coordinates of this point are 0 and u. Why? Because 0 is along x-axis. This is x coordinate. That is time coordinate. And this is along y-axis. And this is y coordinate. And this y coordinate here is u. So this point represents us 0 and u. Because this point is 0 here. Because एक्स एक्सिस की तरफ कुछ भी नहीं है तो 0 है यहाँ, लेकिन ये पॉइंट क्या है, यहाँ कितना दूरी है यहाँ एक्स एक्सिस से u की दूरी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड u। नाउ सी, तो यहाँ अब मैंने यहाँ से नाउ डियर स्टूडेंट्स आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, यहाँ देखना स्टार्ट किया है। तो अब क्या है, नाउ हियर a इज कांस्टेंट। अभी मैंने बताया कि बेटा कि v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v बाई टी, और मैंने कहा कि v इज इक्वल टू a इंटू टी। तो जब v किसकी तरफ लेंगे अलॉन्ग y एक्सिस, और बेटा a को a इज कांस्टेंट और t कहां लेंगे x एक्सिस, एंड दैट रिप्रेजेंट्स ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां क्या आएगी, तो दिस ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। दिस ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन डियर स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ क्या आएगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, v along y axis, t along x axis, तो ये स्ट्रेट लाइन निकलेगी। होप यू हैव गॉट दिस। So this is velocity time graph for a body moving with uniform acceleration in a straight line or in one dimension. See dear students, no see dear. After a time t that is along x axis, it reaches to point A. Whose coordinates are? इसके coordinates क्या है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ टाइम कितना है, यहाँ टाइम t लगता है इसको, यहाँ तक t है, और आफ्टर टाइम t बेटा इसकी वेलोसिटी क्या है v। तो इस a के कोऑर्डिनेट्स आई एम टेकिंग ऑन दिस ग्राफ हियर, ऑन दिस ग्राफ ए पॉइंट a। मैंने बेटा यहाँ इस ग्राफ पर एक पॉइंट a ले लिया, और a के लिए बेटा क्या है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, क्या है इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ t टाइम है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स t है x एक्सिस की तरफ, और वेलोसिटी यहाँ वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट a पर रियलिटी में इसकी v है। तो ग्राफ में अगर लेंगे तो यहाँ बेटा इसका कोऑर्डिनेट है v y एक्सिस की तरफ। इस a के कोऑर्डिनेट से t अलोंग x एक्सिस, और इस a के कोऑर्डिनेट से v अलोंग y एक्सिस। तो बेटा देखो क्या करेंगे, तो a फ्रॉम दिस पॉइंट इट टेक्स टाइम t फ्रॉम दिस, यहां से यहां तक t लगता है, तो x एक्सिस की तरफ क्या लगेगा, यहां क्या ड्रा करूंगा, हियर एट दिस पॉइंट आई विल ड्रा ए परपेंडिकुलर, तो फ्रॉम दिस इट इज टाइम t। यहां से यहां तक कितना लंबा होगा बेटा ये, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, from this point to this, draw a1. See dear students, draw a1 perpendicular on this time axis or x axis। तो बेटा ये कितना होगा, ये a1, ये a1 v के बराबर होगा, क्योंकि ये कितना दूरी पर है v। तो यहां कितनी दूरी पर है, ये v की दूरी पर है। तो बेटा ये v की दूरी पर है यहां से यहां तक, और ये कितना, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट से t एंड v, तो ये a पॉइंट यहां t की दूरी पर है। दिस a इज एट ए डिस्टेंस ऑफ t फ्रॉम x एक्सिस और टाइम एक्सिस, एंड दिस a इज एट ए डिस्टेंस ऑफ v फ्रॉम y एक्सिस। तो यहां मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये t के बराबर होगा, और a से यहां y एक्सिस या v एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, तो बेटा ये कितना होगा यहाँ v। होप यू हैव गॉट दिस। ओके, वेरी नाइस, वेरी इजी। सी डियर स्टूडेंट्स, नाउ आप देखो तमाशा। सी, तो अब क्या करेंगे बेटा, नो फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट, दिस o, टेक दिस पॉइंट टू बी एज हियर, लेट्स टेक दिस टू बी एज a dash is this point, or this point is to be as b, let's take this to be as b point। now from b, this point b, draw bm, draw from this point, आप खुद करो क्योंकि कुछ निकालने के लिए खुद करो, यहाँ draw bm डालो, ड्रॉ bm परपेंडिकुलर, यहाँ a पहले यहाँ बेटा a1 परपेंडिकुलर इस पर डाला था, और a यहाँ लिखो a2। अब ड्रॉ करो bm परपेंडिकुलर किस पर बेटा, a1 पर, a1। सी डियर,
I have drawn here पहले A1 परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस, फिर A2 ऑन दिस y एक्सिस, और ये T और ये B। अब B हम परपेंडिकुलर किस पर? A1 पर। B हम खुद मैंने किया कुछ निकालने के लिए, B हम परपेंडिकुलर ऑन A1, ये मैंने किया। तो बेटे ये भी T के बराबर होगा अलॉन्ग टाइम एक्सिस, ये किसके बराबर होगा? T के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? देखो बेटे यहां से यहां तक U, यहां से यहां तक V, तो यहां से यहां तक कितना है? V। और यहां से यहां तक कितना है? U। तो यहां से यहां तक कितना हो गई? V माइनस यू। क्या होगा बेटा? V माइनस यू। नाउ इट इज वेरी इजी टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे आप डिराइव? कैसे? ये डिराइव करने V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हैव टू डिराइव दिस। अब इसकी डिराइवेशन क्या है? इजी है इसकी डिराइवेशन। देखो बेटे क्या है, see dear students, now derivation is very easy. Let us consider this to be as theta. We know that the velocity time graph, the slope of velocity time graph gives us acceleration. पिछले टॉपिक में पढ़ा है ना हमने बेटा, क्या पढ़ा हमने? That slope of VT graph, slope of this VT velocity time graph with time axis, that is tan theta, the angle that it makes with this theta, and that tan theta gives the slope of this, and this gives us acceleration. वो क्या देता है? we know बेटा क्या पता है? we know slope of VT graph, क्या देता है? we know slope of VT graph gives acceleration, gives acceleration. स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो बेटा ये बहुत आसान है। तो स्लोप किसके बराबर होता है यहाँ VT ग्राफ पे? इसका द थीटा दैट इट मेक्स विद दिस, और इसका tan ले लो, बिकॉज tan थीटा गिव्स द, ये इस लाइन की, इस ग्राफ की चढ़ाई देते हैं। जितना थीटा ज्यादा होगा, जितना बेटे ये थीटा ज्यादा होगा, चढ़ाई ज्यादा होगी, जितना ये कम होगा, चढ़ाई कम होगी। अगर यहाँ ये यहाँ ऐसे होता है ये ग्राफ यहाँ, तो थीटा कितना होता है? 0 tan 0 0, और इसका स्लोप क्या निकलता है? 0, बिकॉज स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज VT ग्राफ इज गिवन बाय tan थीटा। अगर tan थीटा यहां होगा ऐसे, तो ये कितना बनाएगा? अगर यहां 90, तो tan 90 इंफिनिटी, तो इसकी चढ़ाई कितनी होती है? जबरदस्त। so slope increases as theta increases, tan theta also increases. That is why tan theta gives slope of this graph, that is this line. See now, so tan theta किसके बराबर आएगा? Because it gives acceleration, acceleration. Because the importance of velocity time graph is that the slope of it gives us acceleration. वो हमने पिछले टॉपिक में बेटा पढ़ा था। देखो अब क्या, तो सीधे लिखेंगे ये tan थीटा इस ट्रायंगल में किसके बराबर है? tan। therefore tan थीटा, बताओ tan थीटा इज इक्वल टू am बटा बाई m, यहाँ m भी लिखा है मैंने, यहाँ इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया मैंने? m b। tan थीटा इज हियर am बाई m b, और ये बेटे किसके बराबर है? एक्सेलरेशन a। बट am किसके बराबर है? am इज इक्वल टू a1 माइनस am, बट a1 किसके बराबर है? v के बराबर। और am ma1 किसके बराबर है? u के बराबर। तो बेटा am किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा v माइनस u। तो बेटा मैं सीधे लिखूंगा यहाँ am इज इक्वल टू am, क्या लिखेंगे? ये है a1 माइनस ma1 डिवाइडेड बाय mb इज इक्वल टू a। देखो a1 माइनस ma1 गिव्स am, लेकिन ये a1 किसके बराबर है? u के बराबर, और ma1 किसके बराबर? u के बराबर। तो ये am किसके बराबर? v माइनस u। तो बेटा यहां लिखूंगा मैं a1 के बदले लिखूंगा v, और इसके बदले u डिवाइड बाय mb कितना है? ये यहां से यहां तक कितना है? t है यहाँ, तो डिवाइड बाय t इज इक्वल टू क्या है? a। तो बेटा आ गया हमारा क्वेश्चन, तो बन गया हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ। नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस, तो वेरी इजी। नाउ डिवाइड करेंगे 1, इसको इसके साथ ज़रूर देंगे और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बेटा a इंटू टी आएगा। at इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स v माइनस u, बिकॉज इसके साथ जरा। तो बेटा ये किसके बराबर आएगा? v इज इक्वल टू u प्लस at। जब यहां लेंगे तो प्लस बनेगा, तो v किसके बराबर? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हियर, बट आई हैव यूज्ड हियर VT ग्राफ, और वी कैन से दिस इज ग्राफिकल मेथड। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव, यहां सिर्फ ये किस पर डिराइव होती है? दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ दैट इज tan थीटा गिव्स एक्सेलरेशन। तो tan थीटा मैंने एक्सेलरेशन के बराबर लिया, tan थीटा ले लिया डिवाइड दिस बाय दिस, और वो किसके बराबर ले लिया? एक्सेलरेशन के बराबर, और इसी में हमारा ये, एंड आई हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस
result. Okay, you have got this. Now next point here is, next derivation here second, वो क्या है, that is s is equal to ut plus 1/2 at square. अब बेटा इसको भी डिराइव करना है, ग्राफिकली डिराइव करना है. तो डेरिवेशन कैसे आएगी बेटा, बहुत आसान, वही बात है. कौन सी बात है, ग्राफ तो बनाया हमने. एक्चुअली बात यह है कि यहाँ गाड़ी चल रही है, जो मैंने कहा कि एट दिस पॉइंट गॉड इज ऑलरेडी इन मोशन, वो गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है. तो मैंने यहाँ टी ले लिया था 0 और मैंने यहाँ ऑब्जर्व की थी वेलोसिटी u. तो यहाँ से मैंने स्टार्ट अपनी मोशन जो है ना वो ले ली मैंने फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज फ्रॉम बी टू यहाँ ले ली a. तो आफ्टर अ टाइम t इट रीचेस टू पॉइंट a कवरिंग अ डिस्टेंस s, और बट दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड फाइनली अकर्स अ वेलोसिटी v. ये रियलिटी है बेटा. और इसी रियलिटी का मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफिकली डिराइव करता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन. नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, तो एक और यहाँ डेरिवेशन क्या क्या आई थी इंपॉर्टेंस, एक और इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बेटा इसके बारे में आपको जानकारी दी थी. क्या जानकारी दे दी थी बेटा, कि दैट स्लोप ऑफ, ये दे दिया था कि द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल विद टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट. क्या है ये बेटा, ये कहा था मैंने. डिस्प्लेसमेंट किसके बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वी नो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ. क्या है वीटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस, वी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वीटी ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेटा कौन सा ग्राफ, वी नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट किसके बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बेटा किसके बोलता है, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर किसके बाद, एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट इट एनक्लोजेस विद व्हाट एक्सिस, टाइम एक्सिस. ये बेटा ये डॉटेड ले लिया, ये डॉटेड वाला जो डैश वाला मैंने ले लिया. दिस इज द एरिया दैट इज एनक्लोज्ड बाय दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, एंड दैट एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द importance of velocity time graph, because easily we can derive this once we know the concepts, because all these things here are dear students based on concepts. So बेटा क्या लिखूंगा यहाँ, तो s डिस्प्लेसमेंट से लिखते हैं, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है बेटा. तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट इट एनक्लोजेस विद, दैट इट यहाँ पहले लिखो, दैट इट एनक्लोजेस विद, किसके साथ एनक्लोज करता है, एनक्लोजेस विद टाइम एक्सिस, विद टी एक्सिस का मतलब क्या है, टाइम एक्सिस. तो बेटा यहां लिखूंगा, देखो बेटा क्या लिखूंगा यहां, देखो देयरफॉर s किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर, एरिया आपको किसका एरिया है, वो एरिया है बेटा इस ट्रायंगल का और इसका, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ये रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2, वो दो टर्म से बना है ना s ऐसे बेटा यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर. तो बेटा यूटी में ये एरिया प्लस ये एरिया करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना पड़ता है. तो इसीलिए बेटा एरिया अंडर दिस इज दिस एरिया प्लस दिस. तो बेटा मैं क्या करूंगा यहां, दैट इज एरिया ऑफ वो किसके बराबर है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, OA1MB प्लस किसके एरिया ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल AMB. क्यों मैंने ये दो हिस्सों में लिखा, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि आप लिखो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसलिए ये प्लस ये लिखा. तो S किसके बराबर आएगा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका इट इज सिंपली लेंथ बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना बेटा, लेंथ जरबे लेंथ जरबे ब्रेड्थ, वो किसके बराबर आएगा, U इंटू टी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ इंटू लेंथ, वो लिखेंगे U इंटू टी, हो गया हमारा. प्लस व्हाट इज एरिया ऑफ दिस राइट ट्रायंगल AMB, द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड, वो भी आ गया बेटा. 1/2 इंटू बेस कितनी है, बेस इज BM इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है AM. Therefore S किसके बराबर आएगा, S UT प्लस 1/2 इंटू MB. BM किसके बराबर है, BM बेटा T के बराबर है. BM किसके बराबर है, T के बराबर, तो T लिखेंगे यहां. तो देखो बेटे क्या है, AM किसके बराबर है, AM इज इक्वल टू V, यहां से यहां तक V और यहां से यहां तक U
V माइनस यू इज इक्वल टू ए एम। तो ये ए एम किसके बराबर है? ए एम इज इक्वल टू V, यहां से यहां तक V और यहां से यहां तक U, तो ये ए एम किसके बराबर आएगा? V माइनस यू, है ना बेटा? ओके, लेकिन अभी हमने लेकिन निकाला है कि V माइनस यू इज इक्वल टू 80, निकाला ना बेटा? या अगर ये भी पता नहीं है, आप ऐसे यहां लिखेंगे सीधे V माइनस यू इज इक्वल टू 80, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V माइनस यू किसके बराबर निकाला हमने? 80। तो देयरफॉर S किसके बराबर आएगा? S ut प्लस 1/2 t इंटू इसके बदले लिखेंगे 80। तो बेटा ये क्या किसके बराबर आएगा? देयरफॉर S आएगा बराबर, S कम्स आउट टू बी एज ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। अगर ऐसे भी नहीं आएगा तो आप सीधे लिखो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव यू द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी? tan थीटा am बाय bm, और am आएगा बेटा v माइनस यू डिवाइड बाय t। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहां आपको पता है भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू किसके बराबर है? 80। तो हम सिंपल तरीके से लिखेंगे क्योंकि वी आर नाउ नोइंग दिस थिंग्स। तो मैंने यहां लिखा 80, तो 1/2 into t into 80 आएगा 1/2 80 square. Hope you have got this. Now I am going to derive here the third equation of motion. Very easy. थर्ड इक्वेशन आप डिराइव करेंगे बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, where s is displacement, v is final velocity, u is initial velocity, and a is acceleration, and that acceleration here is constant. See dear students, आप कैसे डिराइव करेंगे? देखो बेटा, अगेन ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? The area under this velocity time graph with time axis gives us displacement. लेकिन यहां क्या करेंगे? यहां मैं सारा का सारा लूंगा। यहां मैंने पिछले क्वेश्चन जो पिछला कॉन्सेप्ट था, जो इससे पहले कॉन्सेप्ट s इज इक्वल टू यूटी में, मैंने ये एरिया प्लस ये ले लिया था क्योंकि ये यूटी था और ये था 1/2 80 स्क्वायर। लेकिन इसके लिए सारा एरिया लूंगा, दैट इज ट्रेपेजियम हियर। द एरिया अंडर AB graph with time axis is a trapezium, that is during time interval t is a trapezium, that is OA1AB, because this and this is parallel to each other and this acts as a perpendicular. तो क्या लिखेंगे? V नो डेरिवेशन इसकी, V नो अगेन लिखो, क्या लिखो? वही पुरानी वाली बात। V नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू एरिया अंडर किसकी? एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ विद टाइम एक्सिस। विद किस एक्सिस के साथ? टाइम एक्सिस। बट ज्यूरिंग टाइम t, यहां से यहां तक। तो बेटे क्या आएगा? S आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो क्या है? व्हाट इज दिस एरिया? ये एरिया क्या है? दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम? OA1A, OA1AB, दिस ट्रेपेजियम। तो एरिया इसका क्या आएगा बेटा? सिंपल, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां लिखेंगे बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑल्टीट्यूड, इंटू हाइट और ऑल्टीट्यूड लिखो, इंटू ऑल्टीट्यूड लिखो या हाइट लिखो। क्या होता है? इंटू यहां जरा में क्या लिखेंगे? इंटू ऑल्टीट्यूड, यहां लिखा है मैंने ऑल्टीट्यूड। यह फॉर्मूला किसकी? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑल्टीट्यूड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? यहां एक है OB और दूसरा है A1A, और इनके दरमियान क्या है? ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA1। तो लिखो बेटा, तो यहां लिखेंगे एक साइड लिखेंगे बेटा यहां OB प्लस लिखेंगे यहां सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखेंगे A1A डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? यहां से यहां तक OA1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसान बन गया बेटा। तो किसके बराबर आएगा? सी डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर S कम्स आउट टू बी एज OB किसके बराबर है? OB U के बराबर है बेटा, और A1A किसके बराबर है बेटा? ये V के बराबर है। डिवाइडेड बाय यहां 2 करेंगे इनटू OA1 इज इक्वल टू T। तो यहां बेटा T से जरा करेंगे। होप यू हैव गॉट दिस। वेरी इजी, वेरी इजी। सी डियर, आप कैसे निकालेंगे इसको बेटा? देखो बेटा कैसे निकालेंगे। देयरफॉर S इज इक्वल टू
u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहां t को हटाना है बेटे, किसको हटाना है? t को हटाना है। तो t कैसे हटेगा? आसान तरीके से हटेगा t। देखो बेटा कैसे हटेगा, देखो जिगर कैसे हटेगा ये t। We know tan theta, that is slope of VT graph. Slope of VT graph gives us acceleration. We know because यहाँ लिखो, because tan theta is slope of VT graph gives क्या, वो क्या देता है बेटा? acceleration। लेकिन ये tan theta किसके बराबर है? ये है AM, ये tan theta किसके बराबर है? AM divided by BM, perpendicular by base, BM is equal to E। लेकिन ये am किसके बराबर है? am इज v माइनस u, क्योंकि यहां से यहां तक v और यहां से यहां तक u, तो ये am किसके बराबर आएगा? am इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई bm। bm किसके बराबर है? t। तो बेटे ये किसके बराबर है? a। तो देयरफॉर यहां t को यहां ले लो, a को यहां ले लो, तो बताओ t किसके बराबर आएगा? t यहां आएगा a बाई v माइनस u। तो t किसके बराबर है यहां? t बेटा ये लिखेंगे a बाय सॉरी यहां किसके बराबर है? t को यहां ले लो बेटा, t देखो क्या है, t को यहां ले लो और a को यहां, तो t किसके बराबर आएगा? t यहां लिखेंगे t v माइनस u बाई a, किसके बराबर आएगा? t को यहां ले लो, a को यहां ले लो, तो t किसके बराबर आएगा? v माइनस u डिवाइडेड बाई a। देयरफॉर यहां क्या लिखेंगे? t के बदले बेटे यहां लिखूंगा v माइनस u बाई a। नाउ वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे, Therefore s किसके बराबर आएगा? ऊपरी को ऊपरी के साथ और निचली को निचली के साथ बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जरा दे दो, तो ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा, दिस एक्चुअली v प्लस u प्लस v, देखो यहाँ v प्लस v, तो ये v प्लस u लिखेंगे और यहाँ क्या है? इंटू v माइनस u, और डिवाइड में क्या है? 2 इंटू e। तो बेटे ये है a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर s किसके बराबर आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ डिवाइड 1 करेंगे, तो बेटा किसके बराबर आएगा बताइए? अब इसको इसके साथ जरब दो और इसको इसके साथ जरब दो, तो हमारा काम बन गया। तो बेटे क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ जरब और इसको इसके साथ, तो बेटे ये आएगा 2as हो गया व्हाट दिस, एंड दिस वाज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिराइव हियर not graphically, I have completed the 3 equations of motion when a body is moving with uniform acceleration. I have derived this graphically by using VT graph. Now dear students, I will throw here right on displacement in nth second. I will derive this mathematically, and inshallah I will derive this also with the help of a graph, that is the VT graph. But let's first of all derive this. यहाँ सिंपल है, इसको VT ग्राफ नहीं यूज करेंगे, सिंपल तरीके से डिराइव करेंगे और फिर बाद में इसको यूज करेंगे एज VT ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट, सी मी एंड कीप अटेंशन हियर। देखो बेटा क्या है, देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन, ये नया कंसेप्ट है लेकिन अच्छा है। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन एन सेकंड। यह क्वेश्चन वो होता है बेटा बराबर s इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इसके बराबर होता है। अब इसको डिराइव करेंगे, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। ये डिस्टेंस किस में है? nth सेकंड में, लास्ट सेकंड में भी कहेंगे, nth सेकंड में भी कहेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड में कितना होता है? u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी and is acceleration and n is n seconds, not nth second, this is nth second. Now derive, now we have to derive this. See my dear students, derive equation कैसे करेंगे? देखो, we know बेटा क्या हमको पता है, सबको पता है कि s इज इक्वल टू किसके बात है? ut प्लस 1/2 et स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t सेकंड से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है किसमें? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट किसमें है? t सेकंड में। किसके बाद? ut प्लस 1/2 et स्क्वायर। If I am writing here distance traveled in, displacement traveled in n seconds, तो t के बदले क्या लिखेंगे बेटे? यहाँ u इंटू t के बदले n प्लस 1/2a, और t के बदले क्या लिखेंगे? n, तो n स्क्वायर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड्स इज इक्वल टू u, t के बदले n और यहां भी t के बदले n। समझ में आई बात? ऐसे लिखेंगे यहां बेटा। सपोज यहां बॉडी स्टार्ट हो गई एंड आफ्टर n सेकंड के बाद उन्होंने यहां ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से स्टार्ट हुई,
n सेकंड से कितना ओ टू मान लीजिए कि ए तक ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये किसके बराबर u इंटू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, इसकी फर्स्ट लिखेंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट आल्सो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन, ये बेटे क्या है, ये एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन कितने सेकंड में, इन n सेकंड्स। जैसे कि t सेकंड्स में ut, लेकिन n सेकंड्स में n यहां लेना है t के बदले। ओके, नो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड्स, तो यहां क्या लिखेंगे, s n-1 सेकंड। ये n सेकंड के लिए था, ये n-1 सेकंड यानी 1 सेकंड कम, s n से n सेकंड से 1 सेकंड, वो कितना है n-1। तो यहां क्या देंगे, यहां u इंटू n के बदले बेटा n-1, क्योंकि अगर इसको 7 सेकंड लगते हैं तो इसको 6 सेकंड, तो अगर यहाँ 7 हमने दे दिया तो यहाँ कितना लेना है 6, क्योंकि n-1 6, तो n-1 देना है यहाँ, प्लस बेटे यहाँ क्या है 1/2, तो यहाँ a और n के बदले n-1 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो क्या है, therefore what is displacement, ये किसके लिए, ये n-1 के लिए, यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है s n-1 सेकंड। ये किसके लिए था, s n सेकंड के लिए। ये किसके लिए है, यहां से यहां तक s n-1 ये डिस्प्लेसमेंट है, ये s n के लिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि काम 1 सेकंड काम है यहाँ, दैट इज नोन एज nth सेकंड। तो nth सेकंड में कितना होगा ट्रेवल, nth सेकंड में, ये है nth सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए कितना हो गया nth, लास्ट सेकंड के लिए, दैट इज s n minus s n minus 1। therefore displacement ट्रेवल्ड इन कितने सेकंड में बेटा, nth सेकंड, खाली nth सेकंड मींस लास्ट सेकंड। अगर यहां से यहां तक 7 सेकंड है, यहां से यहां तक 6 सेकंड है, तो पता है लास्ट सेकंड nth सेकंड में कितना करेगा ये, दैट मींस Sn minus Sn minus 1, easy। तो therefore Snth is equal to Sn minus Sn minus 1। ये बेटे लिखो दूसरी और ये लिखो तीसरी, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। Sn is distance traveled in, displacement covered in n seconds, Sn minus 1 is displacement covered in n minus 1 seconds, लेकिन Sn minus 1 इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, यहां से यहां तक, ये कितना है, यहां से nth सेकंड के लिए, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, यहां से यहां तक। देखो अब क्या सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, तो थर्ड क्या बनेगा जल्दी बताएं, Sn आएगी बेटा बराबर, Sn को सीधे दे दो un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, अब माइनस करना है ना बेटा, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस ये करेंगे u इंटू यहाँ लिखेंगे ऐसे इंटू n-1 इंटू सॉरी प्लस 1/2 a, ये n-1 स्क्वायर किसके बराबर है, ये बेटे n स्क्वायर प्लस 1 - 2n, आई एम यूजिंग a - b का होल स्क्वायर, और क्लोज करेंगे। तो पता है किसके बराबर आएगा, ये बताइए किसके बराबर, देखो बेटा therefore Sn आएगा किसके बराबर है Sn, तो यहाँ un, ये un है ज़रब में है ये, प्लस 1/2 an स्क्वायर, यहाँ ज़रब दे दो, यहाँ माइनस से पहले माइनस ऐसे क्लोज करो लॉन्ग ब्रैकेट, तो u इंटू n माइनस u इंटू -1 u प्लस बेटे यहाँ क्या है प्लस, अब यहाँ ज़रब दे दो ना 1/2 ऐसे, इसको भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या आएगा 1/2 डियर स्टूडेंट्स an स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 2a आएगा, 1/2 a इंटू 1/2 a। अब इसको 1/2 a को किसके साथ, -2n के साथ, तो क्या आएगा बेटा 1/2 लिखो a इंटू लिखो यहाँ 2n। अब क्लोज करो यहाँ, देखो तमाशा, now we are very close to the answer of the question। तो therefore displacement, that is displacement in the nth second किसके बराबर आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ लिखो un प्लस 1/2 an स्क्वायर, तो बेटा माइनस से आप यहाँ माइनस से जरा लगा दो, तो क्या आएगा -un माइनस आएगा प्लस u माइनस इंटू प्लस माइनस बेटा 1/2 an स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा अगेन -1/2 a
तो यहाँ क्या है, ये टू और टू कैंसिल, तो बेटा माइनस माइनस प्लस आएगा, तो ये ए आएगा ए एन प्लस, यहाँ तो सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1/2 ए एन स्क्वायर। अब ये क्या था, -1/2 ये टर्म, -1/2 ए, और ये क्या आएगा, -1/2 ए, और ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या आएगा, अब क्या बचा, ए इंटू एन, क्योंकि टू कैंसिल, ए इंटू एन, ए एन आएगा, ए एन, और क्लोज करो। अब क्लोज नहीं करना है बेटा, देखो क्या है, 1/2 an स्क्वायर 1/2 an स्क्वायर कैंसिल, यू एन प्लस माइनस यू एन कैंसिल, तो एस एन क्या आएगा, एस एन बताइए बेटा, एस एन आएगा, यहाँ क्या बच गया, यू, और बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो क्या है, इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ है, पहले प्लस ए एन लिखेंगे, फिर -1/2 ए लिखेंगे। देखो क्या है, आसान क्वेश्चन। देखो एस एन किसके बराबर आएगा, एस एन, तो ये आएगा यू प्लस, अब यहाँ इसको जरा इसके साथ दे दो, 2an माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, है ना बेटा। तो देयरफॉर u किसके बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या कॉमन करो, यहाँ a/2 कॉमन करो, a, क्योंकि यहाँ इस और इसमें क्या a/2 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन, a/2 कॉमन निकलेगा, लेकिन अंदर क्या रहेगा, इस और इसमें a कॉमन, लेकिन डिवाइड क्या है 2, वो बाहर मैंने निकाला। यहाँ क्या है, यहाँ बचा बेटा an, खाली n बचा, n -1, नहीं 2n बचा, 2n -1, तो देयरफॉर बेटा ये किसके लिए आया, एस एन, देयरफॉर एस एन किसके बराबर आया, एस एन सेकंड में, u प्लस a/2 2n -1, therefore we have derived the equation, and this was for the nth second, and okay, wishing you all the best of luck. This is the displacement allowed in nth second, यहाँ से यहाँ तक, good luck to you my dear.